Hello guys, welcome back to class today of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide, and today we're going to work out or discuss the certain important questions for your paper drama. This class is for the students of Jamia Millia Islamia University. Those are going to have their master's exam very soon. आपने कहा सर एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने आने वाले हैं और डेट शीट में भी हम पूरी तरह नजर ना बैठे कि पेपर कब शुरू होने वाला है और पेपर का पॉइंट पहले क्लियर कर लेते हैं कि हमने बात की सर ड्रामा की बात कर रहे हैं द इंग्लिश ड्रामा 1 पेपर 3 और पेपर में क्या क्या करना है पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू है किन किन चीजों को दिमाग में रखना है और पेपर को प्रिपेयर करते हुए कौन कौन सी लेके चलेंगे. The first thing you guys need to work out is to prepare the annotations. As in my old videos regarding the British drama, I have already told you guys to remember the codes. Codes को याद रखें. आप identify कर पाते हैं कि कौन सा codes कहाँ से लिया गया. And when you are able to grab the certain code that is being taken from a certain play or a drama, तो आप बहुत easily recognize कर लेते हैं और पूरे numbers क्यों कर लेते हैं. आपने कहा सर हमें करना क्या होता है. The first question you can see. Comment with the reference of the contest. सर यहाँ पे reference to the contest पहले reference देंगे हम कि the above extract had been taken from certain drama जिसका writer so and so था जिसमें वो ये दो आदमी बात कर रहे थे उसकी explanation देनी है. तीन चीजें reference, contest and explanation ये जरूरी है जो हमें नोट करनी है. And then the second term that we need to know कि कहाँ से लिया गया और ये क्वेश्चन कंपल्सरी है. आपने कहा सर कंपल्सरी है. यहाँ पे मैंने आपके लिए सिर्फ तीन एसेट दिए हैं ड्रामा से लेके. अब इन तीन को नोट करते हैं आपको कौन कौन सी ऑन टिप होनी चाहिए. यू गाइस नीड टू नो. एंड सेकेंडली जब हम इनको रूल आउट करते हैं पेपर में सिर्फ दो आएंगे जिनको रूल आउट करना होगा. दो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से तो हमारा 100 नंबर पेपर बनता है जिसको हमें वर्कआउट करना है. सो क्लास को शुरू करते हैं डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट आरटीसी की जो हमारे पास है if though I repeat if thou didst ever hold me in thy heart absent thee from the felicity awhile and in this harsh world draw their breath in pain to tell my story try to recognize this one. सर ये किससे है पहले तो क्लियर करते हैं. ये वर्क किसका है. इट्स अ वर्क ऑफ शेक्सपियर. यस दिस इज अ वर्क ऑफ शेक्सपियर एंड शेक्सपियर को डील करते दिमाग में आता है हैमलेट. Yes, this is all about Hamlet by the friend Horatio. ये बता रहा है कि होरेशियो ने कैसे हाईलाइट किया था. कह रहा है if thou didst ever hold me in thy heart absent from thee the felicity away and in this harsh world draw their breath in pain to tell my story to tell the story of Hamlet. अब आप कैसे वर्कआउट करते हैं करने का तरीका होगा किन किन चीजों को ऑन टिप करना है तो आइडेंटिफाई करना सीखो. पहले रेफरेंस आप राइटर का नाम और ड्रामा का नाम बताएंगे. सेकंड आप कॉन्टेक्स्ट बताएंगे कौन क्या बात कर रहा था. फिर उसकी एक्सप्लेनेशन इजीली आप हाईलाइट कर देंगे. और याद रखना यहाँ पे टीचर ने सिर्फ रेफरेंस पे ध्यान रखना. जहाँ रेफरेंस लिखती वहां आपके नंबर पूरे सिक्योर है. कम अप टू द नेक्स्ट फेज. Oh she's gone again. I repeat. Oh she's gone again. There the cards. There the chords of the life drop. Oh sacred innocence that sweetly sleeps. All tortures, features, vice, and guilty conscience is a black register. Where is the red? This is from the work of. This is, sir, आपने कहा सर one of the most important drama in a course. हाँ, one of the most important drama in a course. कोशिश करो कहाँ से है. मैं आपको थोड़ा आइडिया थोड़ा देता हूँ कि आप किसको ध्यान दें. This is the Duchess of Malfi. I'm not telling the work of the writer. नाम नहीं बता मैं आपको. आप बहुत easily identify कर सकते हैं. This is the sir Malfi, the Duchess of Malfi. Sir storyline Basola, and it's all about Duchess. There are the two characters in the contest, Basola and Duchess. अब आप कैसे बताते हैं रेफरेंस को ध्यान देंगे कंटेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने आपको बताया. Then you need to jump up to the explanation. Come up to the last phase. Had I as many as souls. I repeat, had I as many souls as there be stars, I did give them all to Mephistopheles. By him I will be great emperor of the world and make a bridge through the moving air to pass the ocean with a band of men. So no doubt it's from Dr. Faustus.
Those who have not worked out Dr. Foster's too, guys, this is the most important drama in your course जो पेपर में कंफर्म है आना है। आपने अगर अभी भी नहीं किया तो प्लीज डू इट राइट नाउ, यू डोंट हैव मच टाइम, ये करना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा सर फोस्टर्स का वर्क है, आपने मिस्टर मॉलो क्या बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है, मैफी स्टोरी से बात कर रहा है, डॉक्टर फोस्टर्स की बात है, एक्सप्लेनेशन, कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस, सारी चीजें आपको देनी है एंड यू गाइस नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डिटेल्स। कम अप टू द नेक्स्ट पार्ट। तो ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट 1 रेफरेंस टू कांस्टेंट आ जाएगा, आरटीसी आनी नहीं, इनको एनोटेशन बोलते हैं जो पेपर में कंफर्म है। देन जंप अप टू द यूनिट 2। यूनिट 2 सर जैसा हम जानते हैं दो क्वेश्चन होंगे, उन दोनों से कोई एक सिलेक्ट करके आपने इजीली करना है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार का, मॉलोस डॉक्टर फोस्टर्स फॉलो क्लोजली द मोरालिटी प्ले डिस्कस। अगर मैं बोलूं डॉक्टर फोस्टर्स द मोरालिटी प्ले हमें डिफाइन करना होगा। इस क्वेश्चन के अलावा जो आपको करना है वो फाइनल मॉलो और डॉक्टर फोस्टर्स करना है। मैं साथ में क्वेश्चन ऐड करते जाऊंगा, प्लीज वर्कआउट करेंगे। द फाइनल मॉलो और डॉक्टर फोस्टर्स जो आपको इस यूनिट में थर्ड को लेके चलना है। Second question, Ben Johnson's Volpone offers a critique of society of the time when it was composed. Sir, here Ben Johnson tried to put out a real picture of the society. Real picture of the society at the time it was being composed. तो हमें ये ध्यान रखना है कि real picture of society क्या है, कैसे कंपोज किया गया, कैसे समझाने की कोशिश की उसने। Come up to the third phase. Sir, unit 3. Comment on the tussle between the King Henry and Prince Hall in Henry IV Part 1। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, आपको समझना जरूरी है आपने क्या डिफाइन करना है। क्या है टसल को डिफाइन करना है इन बिटवीन किंग हेनरी एंड प्रिंस हॉल इन हेनरी IV Part 1। Then come to next question, comment on the significance of play in a play in Hamlet। प्ले इन अ प्ले इन हैमलेट। तो ये तो हो गए दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मैंने कहा था कि मैं खुद ऐड करूंगा, जो आप लिखेंगे वो क्वेश्चन होना चाहिए कमेंट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स और रियली द रिलेशनशिप बिटवीन क्लोडियस, हैमलेट एंड द मदर। आई मस्ट से द मदर ऑफ हैमलेट। यू गाइस नीड टू वर्क आउट दिस। तो तीन का एक ट्रायंगल डिफाइन करना है, ये आपको आना चाहिए। जब आप टू द यूनिट 4, Cleopatra was a woman surrounded by wearing maize in Antony Cleopatra. Wearing maize. She was a woman as she was first with Pompey, then with the Caesar, then with the Antony, and most probably now with the Octavius Caesar after Antony died. Cleopatra was a woman surrounded by the wearing maize in Antony Cleopatra. Comment. You need to discuss this answer with a reference to all the quotes that I have mentioned right now. Come up to the next phase. Write about the role of Caliban in Shakespeare, The Tempest. Sir, Caliban के रोल को डिफाइन करना है आपने टेम्पेस्ट में। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट, comment on the appropriateness of the title of the story, The Tempest. Comment on the appropriateness of the title of the story, The Tempest. Jump up to the next phase. Last question, third unit, comment on the role and the function of Bosola in Webster's The Duchess of Malfi. देखो मैंने नाम क्यों नहीं बोला, क्योंकि इसका नाम यहाँ ऑलरेडी था। थोड़ा सोचने का टाइम था, शायद आपने नहीं सोचा। क्या है कमेंट ऑन द रोल ऑफ द फंक्शन ऑफ द बसोला इन वेस्टर्स द डचेस ऑफ माल्फी। यहाँ पे हमें बसोला को एक डोमिनेंट रोल दिया गया, जिसको बीइंग अ विलेन ऑफ द स्टोरी ही इज अ प्रोटैगनिस्ट टू। तो कैसे प्रोटैगनिस्ट है, कैसे डील करता है, कैसे चीजों को समझता है, हमें वर्कआउट करना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हो सकता है, थर्ड वन जो इस यूनिट का होगा, जो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डचेस ऑफ माल्फी। यू गाइस नीड टू राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डचेस ऑफ माल्फी। कम अप टू द लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस मेजर कंसर्न्स मिडलटन एंगेजेस विद हिज चेंजिंग। सर मिडलटन एंगेज विद हिज चेंजिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चंस हो गए सर, क्वेश्चन कंप्लीट है, आपने बता दिया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वी विल गोइंग टू वर्क आउट दिस। अब पेपर की तैयारी कैसे करनी है, कैसे पेपर में नंबर लेके आएंगे। जैसे मैंने कहा वीडियो की हेडिंग मैंने दिया कि कैसे नंबर लाएंगे आप ब्रिटिश ड्रामा के अंदर, तो उसके लिए आप ये सुन लें और ये समझ लें आप। पहली चीज, ये जनरल पेपर नहीं है जिसमें आप अपनी रफ इंग्लिश लिखेंगे। सॉरी टू से इट्स अ ब्रिटिश ड्रामा, तो आपकी इंग्लिश पूरी तरह पॉइंट आउट करेगी उस रेफरेंस में जैसा लिखा गया है।
You guys need to write the answer in that manner only. Second term, आपको कोर्स को याद करना है. इस पेपर में नंबर लेने के लिए आपको कोर्स मेंशन करने हैं. You guys need to mention the course. जितने ज्यादा कोर्स मेंशन करोगे और कोर्स को ऐड करना है अपने आंसर्स में. You guys need to add these courses in your answer. The more the course are being indulged while writing the answer, the more the points you're going to get in teacher's mind. And that will definitely go in favor of good marks. Third, please try to write the answer before the exam. खाली पढ़ना नहीं है, आपको पहले ही तैयारी कर लेनी है कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या होगा, किस चीज को फॉलो करना है, कैसे हम आंसर्स को परफेक्ट मैनर में दे सकते हैं और किस तरह सबसे बढ़िया आंसर लिखेंगे. तो गाइस ये चीज ध्यान रखें and you can drop the paper. Seriously, जामिया, मैं जामिया की बात करता हूँ तो पेपर स्टैंडर्ड रियली बहुत इजी है as compared to the other universities. लेकिन उस पेपर स्टैंडर्ड के इजी होने का फायदा सिर्फ आपको मिलना चाहिए, आप मैक्सिमम स्कोर लेंगे. कोर्स इज नॉट अ वॉस्ट कॉस्ट, यू कैन वर्क आउट इजीली. आप सिर्फ टेक्निक्स पे ध्यान दें, फॉलो द टेक्निक्स. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई सजेशन मेरे लिए हो कि सर ये चीज ऐसे नहीं ऐसे करवाएं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आए. If you don't have the notes, you can get the notes. उसके लिए मेरा WhatsApp नंबर दिया होता है, आप वहां टेस्ट कर सकते हैं. These are the things that you guys start right now. जल्दी मिलते हैं नई वीडियोस आप, तब तक करना क्या है, so please like, share and subscribe. You think it's worth to watch and share, because always is better to help others. Bye guys.